Hello everyone, welcome back, and this is day 4 at Vietnam. So here is the video. So हमने पहले breakfast कर लिया. In the morning we had that complimentary breakfast in our hotel, so we did that. कुछ भी इंडियन जैसा नहीं था. It was totally different. So we ate some eggs, then fruits, and I had a cup of coffee and other things. So this was our hotel, Gema Hotel, which was pretty good. And side में ही एक chocolate shop था, हमने वहाँ से chocolate की भी shopping कर ली. So this is Dragon Bridge. Actually the Dragon show is on weekdays, like in Friday, Saturday, Sunday, and because we were not able to visit in the night on Friday night, so we thought of taking some pictures and then we could move to Hoi An. So we are just heading towards Hoi An, which is approximately 1 to 1.5 hours from Da Nang. So we had thought of seeing that city of lanterns. So I had that vision, or I had that thought that I'll be seeing that area. I was pretty sure about that. So we headed towards Hoi An and we booked our hotel at Hoi An. And just we have reached Hoi An. This is the marketplace of that Hoi An area, and the driver we got is this driver was actually we had booked from Grab taxi from airport, but we had exchanged our numbers and he agreed to drop us at Hoi An. So this driver we got from Da Nang airport, but we had actually exchanged our numbers, and he was also agreeing to drop us at Hoi An or some other sides. He can make us move in his taxi. He had told us that thing, so he also was interested in that thing. So okay, we just agreed, and just we are moving to our hotel. We will be reaching our hotel in a while. So this is the hotel. We were not staying in this hotel. Actually this was a hotel which was near our hotel. So yeah, so actually this is our hotel, Velar D 54. So जैसे भी हम इस जगह पहुँचे, वी were given welcome drink, and this hotel was pretty good. I liked this hotel. It had swimming pool, everything. It was a small place, but its rooms were bigger. So I loved this place actually. We had booked 3 nights here, but actually then we had to our plan changed, and then we booked another day at Da Nang, and that will be shared. I'll be sharing this another video in that details. And look at the view and the room. So yeah, I love the room actually. This is the area of that coconut boat ride area. बहुत फेमस है होय आन में, जहाँ कोकोनट बोट राइड जो होता है, और ये कोकोनट बोट जो स्पिन भी होती है. यू कैन टेक दैट स्पिन राइड ऑल्सो, बट वी हैडेंट. पर हमने देखा, और काफ़ी सारे क्लिप्स जो है दूसरे कैमरा से लिए गए थे, बट आई हैड नॉट एडेड दैट. इतना सर्च करो, एडिट करो, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो दैट्स वाई इट वॉज प्रिटी गुड एक्चुअली. द वाटर वॉज ऑल्सो गुड, पर क्लीन ही था. और फिर बीच में वो तस्वीर भी लेते हैं हमें खड़ा करके, कि वो फोटोग्राफर तस्वीर लेते हैं, तो आप जो भी पे करके अपना तस्वीर ले सकते हो. हमने भी लिया, और वो तस्वीर सबके खींचते हैं. आपको लेना है नहीं लेना है आपका इच्छा, आप ले भी सकते हैं, अपने भी ले सकते हैं. इफ़ यू वांट टू टेक दैट फोटोग्राफ्स यू कैन पे फॉर देम, अदरवाइज ऐसे ही जाने वाला है व्यर्थ. तो वैसा ही. तो ये जगह तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगा, बड़ी मज़े ही आ रहे थे. और वो लोग बीच बीच में गाने वाने गा रहे थे, और बहुत सारे लोग जो है इंजॉय भी कर रहे थे. मतलब आसपास के जो बोट राइड क्रॉस कर रहे थे वो लोग भी चिल्ला रहे थे. तो दैट वाज प्रिटी कूल एक्चुअली. मुझे तो अच्छा ही लग रहा था. काफ़ी देर तक ही राइडिंग करी बोट की. तो ये है वो एरिया जहाँ पर कोकोनट बोट राइड होता है. मज़ा ही आया और अच्छा ही लगा.
फिर ये कोकोनट बोट राइड करके ये होटल पे आ गए थे, अपना रेस्टोरेंट में एक्चुअली आ गए थे अपना लंच करने, और फिर सो गए थे। फिर शाम को हम तैयार होके निकले टू सी द लैंटन एरिया एक्चुअली, जो पूरा जगमगा उठता है। सो उसी के लिए तो आए थे एक्चुअली। उसके बाद क्या है ना, हमने एक स्कूटी भी हायर किया, पास में ही एक शॉप था उससे। तो जनरली स्कूटी वूटी लेने से पासपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, वो पासपोर्ट अपने पास रख लेते, बट उन्होंने ऐसे ही दे दिया। तो हम स्कूटी ले गए, फिर पेट्रोल भी भरा लिया रास्ते में, एंड हम फिर स्कूटी से जाना आना कर रहे थे। बहुत इजी हो जा रहा था कि पूरा चक्कर काटो पूरा सिटी का आराम से, स्कूटी में ही कोई दिक्कत नहीं, कितना चलोगे इधर उधर जाओगे, स्कूटी में ही यहीं से ही राइड करना है। और हम फिर रास्ते से कोई ट्रैवल एजेंसी जो होता है ना, उससे बाना हिल्स के लिए भी हमने बुक कर लिया था नेक्स्ट डे के लिए। एक्चुअली आप दनांग से भी जा सकते हो, दनांग से ज़्यादा पास पड़ता है, बट हमें होयान देखना था, इसीलिए हमने होयान से कर लिया बाना हिल्स के लिए फॉर नेक्स्ट डे। तो ये है ब्यूटीफुल वही एरिया जो जहाँ पे पूरा लैंटन तो हर पूरा इनके सिटी में पूरे टाउन में लगा रहता है, बट ये वाला मेन एरिया है जहाँ पे सब बोटिंग करने के लिए आते हैं। हम भी आए थे बोटिंग करने के लिए, अपना स्कूटी रख लिया और हम यहाँ पे घूमने लगे और बोटिंग भी किया हमने। और बहुत ही खूबसूरत था नज़ारा, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, और मौसम भी ठीक ही था। सो अच्छा ही लग रहा था, हर तरफ लाइट 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 लाइट, और इतना सुंदर लग रहा था हर जगह लाइट। और यहाँ पे काफ़ी सारे लेदर बैग्स भी मिलते हैं, हैंडमेड लेदर बैग्स, शूज़, और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं। हमने तो नहीं किया, लेकिन जैसे कि पेंटिंग हो गया, समथिंग कुछ मड से कुछ बनाते हैं ना, क्रॉकरी सेट या फिर कुछ होता है, उसका कोर्सेज़ भी बहुत सारे होते हैं। सिलाई विलाई का भी कोर्सेज़ होते हैं, मतलब ऐसे एज 1 डे वर्कशॉप टाइप का, 2 डे वर्कशॉप ऐसे टाइप का चीज़ें होती हैं, पर हमने नहीं किया, लेकिन कुछ लोग करते हैं। बेसिकली हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था। सो इस एरिया, ये एरिया एक है फ़ोटो सेल्फ़ी एरिया, वहाँ पर भी हमने सेल्फ़ी वगैरह खिंचाया इन लड़कियों के जाने के बाद। सो या और हमने बोटिंग भी करी, और पूरा ये जगह ही इतना सुंदर लग रहा था मुझे। वो जो डिज़नी वाला मूवीज़ होता है उसकी वाइब आ रही थी, जिसमें रैपुंज़ल होता है ना, जिसके उसके पेरेंट्स जैसे वो खो जाती है तो राजा रानी रहते हैं ना उसके पेरेंट्स, तो वो हमेशा उसके बर्थडे के दिन में जो फ्लाइंग लैंटर्न होते हैं ना जो उड़ाते हैं, वो वाले वो छोड़ते थे उसके बर्थडे वाले दिन में, और ऐसे उनके शहर जगमगा उठता था उनका जो किंगडम। तो मुझे वैसा टाइप का ही फीलिंग ये जगह को देख के आता है। तो क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ डिज़नी प्रिंसेस। आज के लिए बस इतना ही, और डे 5 में मैं फिर मिलती हूँ फिर से ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कहाँ लेटर दिया? हाँ, यहीं पर है।